and yes, आएगा तो मोदी ही can wait for a while, but क्या अभी योगी ही आएगा? Let's be very clear about this. If these numbers are correct, this is a Yogi wave election. Is it fair to say that now Yogi Adityanath has made his name as the first among equals? Let's quickly recount the numbers, vote share and seat share of Uttar Pradesh. I want to start with the vote share because that tells us a very interesting story. The fact that despite anti-incumbency, despite the fact that there was a lot said about his handling of COVID, let's see the kind of vote share that Yogi Adityanath has got well ahead of Samajwadi Party. The vote share of the Bharatiya Janata Party is just a little below 40%. You have Akhilesh Yadav at 35%, so it might seem a close call over here. But then when you see its conversion into seats, BJP is way ahead. And this is just our poll. In the poll of polls, BJP has crossed the 250 mark. They have gone beyond the 270 mark, in fact. So 225 is the conservative projection we have for the Bharatiya Janata Party, which means that they have lost just about 100 seats, and the Samajwadi Party is at 151. Now let's break down the qualitative questions for you. Where are these votes coming from for the BJP? Who is the most preferred chief ministerial candidate of the people of Uttar Pradesh? Yogi Adityanath is a clear favorite, 48%. Anti-incumbency, handling, what have you, 48%. Close to half of the people of UP said he's the man we want back in the second term. This will also be a very interesting reply to people who were saying maybe the BJP comes back. We don't know about Yogi Adityanath. But why is he winning? Let's take a look at the various sections. Who is the preference for, say, the Jatavs? Now, Jatav technically is what has been a captive vote bank of Mayawati, of the BSP. But can we please get the Jatav vote on? Right. So if we look at the Jatav votes, what are the election issues in Uttar Pradesh? If we can please get the graphics right, we are talking about the Jatav vote. Let's quickly look at the issues. Unemployment 36.6, farmers issues 20.5, law and order is 26%, and the other issues we'll see in just a bit. Now, which political party is favored by the backward classes? And here we are talking about the Jatavs. 34.8% strangely say the BJP, which is more than, okay, the BSP is the maximum, 42.8%, hardly any surprises. But the second option is not the Congress. The second option is the BJP at 34.8%. Samajwadi Party naturally is at 9.2%. Let me quickly open this up. Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, joining us along with Harshvardhan Tripathi, senior journalist with me in the studio, Ghanshyam Tiwari, national spokesperson, Samajwadi Party, Dharmveer Chaudhary, national spokesperson of the BSP, Rekha Chaudhary, national spokesperson of RLD, and Syed Aseem Waqar, national spokesperson of the AIMR. हर्षवर्धन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये सरप्राइजिंग लगा कि जाटव कह रहे हैं कि हमें मायावती जी के बाद योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। और अगर हम इस तरह से इसको देखें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब मायावती आई और जो उनको हम कहें कि जो कुछ उनसे उम्मीदें थी, जो कुछ वो करती हुई दिख रही थी, एक समय लगता था कि पूरे के पूरे दलित वोटरों के लिए वही अकेली मसीहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से राजनीति बदली है और विशेष करके जो हम कहें कि जिसको हम कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज क्लास को जो स्कीम्स के जरिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए पहुंची है, तो ये बहुत चौंकाने वाला दिखता नहीं। मुझे लगता है कि ये वही है जो जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। Now issues, I want to go back to the issues graphics. This will shed more light on why Yogi Adityanath is the preferred chief ministerial candidate. Law and order is one of the major issues. Unemployment though is also an issue. Farmers is 24.5%, but 26, the second highest number of people have said law and order. So Sanju Verma, tell me this. Why is it that despite unemployment being one of the major, in fact being the topmost issue, people have still thrown their weight, according to these numbers, behind the BJP? You know, Padmaja, first and foremost, let's be very clear about the fact that the unemployment bogey has been overhyped. And I say this with a lot of responsibility because if you look
data that captures the net new additions to the employment roll. You will see that every month for the last 7 years, I'm talking every month on an average, even during COVID period, the average net addition has been between 10 lakh to 15 lakh people per month. So, assuming that 12 lakh is the average, it means that we've been adding roughly 1.4 crore people to the EPFO base every year for the last 7.5 to 8 odd years, which means employment has been given to 11 crore plus people. And I'm not even talking about Mudra Yojana, where more than 17 lakh crore has been given to 30 crore people, making them self-employed and self-reliant. So this unemployment bogey is something that the opposition has been harping about. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सिर्फ एक बोगी है सैयद असीम वकार, नौकरियां मिल रही हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, वहां पे योगी आदित्यनाथ को फुल मार्क्स मिल रहे हैं। लोग उनको ना सिर्फ गांव में पर शहरों में वोट कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। बुलडोजर चल रहा है, वोट मिल रहा है। सैयद असीम वकार साहब, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि जब चुनाव होता है, मैं एक बात कहता हूं हमेशा से, जब चुनाव होता है और चुनाव की जब डेट पोल की आती है तो चुनाव दो जगह बढ़ जाता है। वो लोग जो सरकार हटाना चाहते हैं, दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, और वो लोग जो सरकार को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। चुनाव इन्हीं दोनों लोगों के बीच में होता है, इन्हीं दोनों बातों के बीच में होता है। सरकार बनाना है या सरकार वापस लाना है या हटाना है, इसके अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है मैडम। और रही बात जिनको लगता है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शायद उन्होंने उस हाथरस की बेटी का और उसके परिवार का दर्द देखा नहीं। जो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी थी, उन्होंने कोरोना में किसी अपने को खोया नहीं। तो मैं इन बातों में जाता नहीं हूं। 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन के बाद अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो सैयद असीम वकार, आपको लगता नहीं कि किसी भी प्रदेश के लिए ये चीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी दोनों के ऊपर ये इल्जाम था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पर अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की राय देख ले तो यहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स को सबसे कम नंबर दिए गए हैं। लोग सच में नौकरी की बात कर रहे हैं, सच में न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट कि यहां पर अब ये नहीं है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। अब लोग कह रहे हैं हां जी नौकरी पे देंगे, न्याय व्यवस्था पे देंगे। नहीं तो ना तो आपका जो पोल दिखा रहा है या किसी चैनल का पोल जो मैं देख रहा हूं, सबका पलट देख रहा हूं, किसी का भी एग्जिट पोल इस बात पर नहीं दिखा रहा है कि वो नौकरी पे चुनाव हुआ हो या न्याय व्यवस्था पे हुआ हो। मैक्सिमम लोग नारे लगाते फिर रहे हैं धर्म के, जो पहले लगा रहे थे वो आज भी लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को जो मैंने देखा इंटरव्यू दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। तो आप जो चुनाव, जिन लोगों का इंटरव्यू आपने लिया या जो लोग खड़े थे, मैं समझता हूं या तो वही लोग बाहर आए होंगे या आपका कैमरा उन्हीं लोगों के बीच में गया होगा। नहीं, पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। अच्छा, आपको सच में लगता है कि अभी भी जात पात पर ही वोट पड़ रहा है? इससे पहले कि संजू वर्मा जवाब दे, हर्षवर्धन जी कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, मैं इसको हमेशा ये कहता हूं कि पॉइंट आउट होना चाहिए। अब ये देश के नेता हमेशा जब मुद्दे की बात होगी तो कहेंगे कि हिंदू मुसलमान का चुनाव है। और मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर, अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे, अगर आप वाराणसी की बात करेंगे, अगर आप मथुरा की बात करेंगे, और वो अयोध्या जिसका अपना एक महत्व है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनना था, अगर वो अभिशप्त हो गया, वहां एक ढंग का कारोबार नहीं है, वहां एक होटल नहीं है, वहां एक इंडस्ट्री नहीं लगी, वहां की सड़कें ठीक नहीं हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तब तो सेकुलर पॉलिटिक्स होती थी ना। तो अगर ये कम्युनल पॉलिटिक्स थी और कम्युनल पॉलिटिक्स पर लोग वोट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेसवे आ गया तो बड़ा अच्छा है, अगर वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर बना, डिफेंस कॉरिडोर बना, बहुत अच्छा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम काशी विश्वनाथ जब जाते थे तो हमें चौड़ी सड़कें नहीं मिलती थी, हमें गलियों में जाना पड़ता था, बाबा विश्वनाथ के दर्शन गलत तरीके से होते थे, वहां जिस तरह से सड़कों पर जो दिखता था वो अपने आप में बहुत ही खराब चित्रण था। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये सेकुलर पॉलिटिक्स है और इसको करते रहिए तो सब बहुत अच्छा है, कैसे कह रहे हैं आप? धर्मवीर चौधरी, ये बताइए कि अगर सच में अभी कम्युनल पॉलिटिक्स ही करनी थी योगी आदित्यनाथ को, तो वो तो गोरखनाथ मठ के मठाधीश है ना, तो वो खुद को बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों प्रचलित करते? वो तो कहते भाई मैं गोरखनाथ मठ का हूं, पर वो कह रहे हैं कि भाई इस बुलडोजर से माफिया के घर गिरेंगे और गरीब के लिए सड़क बनेगी। विकास पे बात कीजिए। नहीं, तो पद्मजा जी आप ये बताइए कि ये बुलडोजर टैनी के घर पे क्यों नहीं गया? टैनी तो नेम्ड एफआईआर में है और प्रधानमंत्री के कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहा है, और ये कुलदीप सेंगर जैसे माफियाओं को पालते हैं, उनका बचाव करते हैं। चिन्मयानंद स्वामी को भी देखा, डीएम हाथरस को भी देखा, और जो एसएसपी वैसे जो मंत्री हैं उनका नाम एफआईआर में नहीं है, उनके बेटे का है और वो जेल गए। नेम्ड एफआईआर में नाम है, नेम्ड एफआईआर में नाम है। आप किस चीज के लिए नाम है उनका एफआईआर में? किस चीज के लिए? आपके चैनल पे पद्मजा जी नेम्ड एफआईआर किस चीज के लिए, क्या धारा है? नेम्ड एफआईआर है। मैं आए नहीं है, हम लोगों तो जो ये जो इनका सर एफआईआर में आशीष मिश्रा का है और 13 और लोगों का है। इनका भाषण सुनिए, इनका भाषण सुनिए, और उसमें आप जाइए एफआईआर में, इनके नाम से एफआईआर है। अरे सर देखिए, अभी जो एफआईआर है उस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं। सिंपल सी आपसे बात ये पूछ रही हूँ, एक सेकंड धर्मवीर जी, सिंपल सी बात ये पूछ रहे हैं कि अब आंकड़े आपके सामने है, द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। हियर पीपल आर सेइंग कि इन मुद्दों पे आज भी 48% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारी पहली पसंद हैं। कुछ तो वजह होगी ना धर्मवीर जी कि 48% लोग कह रहे हैं दैट योगी आदित्यनाथ इज आवर प्रेफर्ड सीएम। पद्मजा जी, ये जो सर्वे है ये देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी सर वोटिंग तो हो गई, अब सर्वे क्या ही गुमराह करेंगे? सर राह तो देख ली जिनको देखनी थी। ये एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, ये सर्वे गुमराह कर रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल है ये भी गुमराह कर रहे हैं, आपको बता दूं मैं। तो आपको लगता है एक अलग एग्जिट पोल चल रहा है, कोई 300 दिखा रहा है, कोई 200 दिखा रहा है, कोई 250 दिखा रहा है, पर तो 200 से कम तो कोई नहीं दिखा रहा ना, सब बहुमत दिखा रहे हैं। और ये मैं पद्मजा जी, आप 10 तारीख का इंतजार करिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली थी 2007 में स्पष्ट बहुमत की जी, तो किसी बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ओके, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। क्विक आंसर टू दैट संजू वर्मा, देन आई वांट टू गेट द नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा पॉइंट। चल रहा है संजू वर्मा, व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is, he is saying that right now this is an overestimation, if not against the BJP, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। Padmaja, the fact of the matter is that, I thought it's only the Congress party which is the proverbial ostrich with head buried under the sand. It has refused to reckon with reality, but unfortunately I think that the contagion has caught on to the BSP as well. Forget about one poll or two polls or three polls. More than a dozen polls have said that the BJP under Yogi Adityanath is coming back to power. The Samajwadi Party is a distant second. The Congress is completely routed and nowhere in the equation. And the Bahujan Samaj Party is also completely routed. If the Bahujan Samaj Party gets even 10 seats or 12 seats, that will be, excellent. So I think this spokesperson should get a reality check and stop disrespecting and discrediting what the electorate has said in a loud and clear voice. 10 तारीख को आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बुलडोजर मठ पे जाके खड़े हो जाएंगे आपके, और पूरी बहुमत की सरकार बनेगी बीएसपी की। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये चैनल वालों की दुकान भी बंद हो जाएगी जो ये एग्जिट पोल दिखा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे धर्मवीर जी, आप बीजेपी से गुस्सा हुए ना, आप लगे हाथ चैनल को भी क्यों लपेट रहे हैं? ये तो एग्जिट पोल एजेंसी ने किया है। जो आप एमएलए का चुनाव लड़ा रही है,
कल उनको आप बीडीसी का और पार्षद का चुनाव लड़ाइएगा। अरे आप हार चुके हैं, चुप हो जाइए। टीवी स्टूडियो के अलावा आपको कहीं पर कोई पूछता नहीं है। एक सेकंड धर्मी चौधरी जी, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो पिछड़े अति पिछड़े हैं वो, और खास तौर पर जो जाटव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी दूसरी पसंद बता रहे हैं। जीती नहीं है। आपको ये चौंकाने वाली बात नहीं लगती? आपका सुपड़ा साफ हुआ है। सीधी बात अभी ये पूछी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वर्ग बनाया है जो जात पात के आधार पर नहीं। धर्मी जी सवाल सुन लीजिए। ये पश्चिम बंगाल में भी दिखा रहे थे। ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए। आज ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वोटर्स का वर्ग बनाया है जिसमें ओबीसी भी आते हैं, जाटव भी आते हैं, नॉन जाटव दलित्स भी आते हैं और नॉन यादव ओबीसी भी आते हैं। ये वो वर्ग है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो कि लाभार्थी वर्ग है। और इसीलिए शायद कि जब जाटव से भी पूछा गया कि आपके पसंदीदा नेता कौन है, तो पहले उन्होंने कहा बहन जी, दूसरे नंबर पे थी बीजेपी। आप क्या कहेंगे? देखिए पद्मजा जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ये बीजेपी वाले जो संवैधानिक अधिकार है प्रतिनिधित्व का आरक्षण, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। और ये जाटव समाज के लोग, ये एससी समाज के लोग, ये कतई विमुक्त होने वाले नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है कि देश से इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। एक वोट नहीं मिलेगा। लोग आपके कैमरे पर कोई भी बात कोई करता रहे, लेकिन एक वोट बीजेपी को दलितों का नहीं मिलेगा। दलित समाज के लोग ये चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ। सर 2014 से आरक्षण खत्म ही हुआ जा रहा है, अभी 7 साल हो गए। ये तो या तो ये प्रक्रिया इतनी धीरे चल रही है कि 7 साल से उन्होंने 370 खत्म कर दिया, उन्होंने 35A खत्म कर दिया, उन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, बट आरक्षण ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक। एक और मैं आंकड़ा, there's another figure that I want to show, the different demographics and how they are voting, and that's when ये जो ठेके पट्टे पे नौकरियां दी जा रही हैं, ये भी एक तरह से आरक्षण को खत्म करना है। He's going on and on and on, and you're not raising him. Okay, that is his point of view. Which political party is favored by women in Uttar Pradesh? And why this is important is because largely this is a group that most people tend to overlook. Women also, because they are inside their houses, sometimes do not come on the radar of pollsters. 40.4% say that we want to vote for the BJP. 31.2% have gone for Samajwadi Party. BSP 4.9%, Congress 16.4%, and others 7.2%. And which is where I want to bring in Rekha Chaudhary. Rekha Chaudhary जी, अगर हम देखें लगातार महिलाओं को लेकर के एक पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन बनाया जो कि था कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्या ये पूरी छवि गई? क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गुंडागर्दी आएगी अगर समाजवादी पार्टी वापस आई, समाजवादी पार्टी या आरएलडी, और इसीलिए इसका फायदा हुआ है बीजेपी को। 40% लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं बीजेपी हमारी पसंद है। नहीं पद्मजा जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, हाथरस में जिस प्रकार दलित बेटी की घटना हुई, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी वहां पहुंचे और उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उन्नाव की 2 घटना, कुलदीप सेंगर वाला आप मामला देखिए, बीजेपी की सरकार में न सिर्फ उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम किया गया। दूसरी घटना अभी रिसेंटली मैं बताती हूं, उन्नाव में जो बेटी का अपहरण हुआ, उसमें 2 महीने तक ये सरकार, ये प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, उस बेटी की डेड बॉडी बरामद की गई। बुलंदशहर की घटना आप देखिए, कितनी घटनाएं मैं बताऊं जो महिलाएं बीजेपी को अपने पहली पसंद क्यों बता रही हैं? सरकार में हुआ है, महिलाएं अपनी नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जनता ही एग्जिट पोल होती है पद्मजा जी, और जनता अपना, जिस प्रकार एक किसान मौसम देखकर बता देता है कि कौन सी फसल उसमें उगनी चाहिए, उसी प्रकार से जनता बहुत पहले ये मन बना चुकी थी कि हमें किसको वोट देना है और हमें किसकी सरकार बनानी है। इस तानाशाह और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकना है,
ये जनता पहले ही मन बना चुकी थी, चाहे वो किसान हो, Okay. चाहे वो महिला हो, चाहे I need युवा, to speak बेरोजगार now, युवा हो, Okay, तो चाहे Sanju दलित Verma, हो, clearly सारा we have दलित, reached a सारा point where दलित nobody is going to आज agree with गठबंधन any की of बात these कर रहा है। various data sets. Sanju Verma. पद्मजा जी, पहली बात तो ये कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन के अंदर धंसाकर यदि आपको रखना है और जनता के जनादेश का अपमान करना है, तो आपको ये मुबारक हो, जनता ने एग्जिट पोल के द्वारा अपना जनादेश स्पष्ट कर दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी योगी के डबल इंजन के तहत हम दोबारा 10 मार्च 2022 को वापस सत्ता में आ रहे हैं। मैंने आपको घुसने भी नहीं दिया था। संजू जी, ये वही जनता है जिसने आपको गाँव में घुसने नहीं दिया, जिस प्रधानमंत्री तक को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, राजनाथ सिंह को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? ये जनता आपके जनप्रतिनिधियों को गांवों से खदेड़ चुकी है। जनता ने आपको बहुत पहले नकार दिया है। ओके, उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। एग्जिट पोल पहले ही दे चुकी है। जनता एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता। रेखा जी, एक सेकंड, उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। अपना मैंडेट दे चुकी है कि गठबंधन की सरकार आ रही है। ठीक है, महिलाएं क्यों आपको पसंद करेंगी? संजू वर्मा, ये आंकड़े आप कैसे समझाती हैं? मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूं कि विपक्ष को ये जानकारी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, कुर्दी हो, मौर्य हो, दलित हो, सबके लिए, मुसलमान हो, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये हमारे लिए एक कार्यशैली है, हमारे लिए सिर्फ नारेबाजी नहीं है। और आपको आंकड़े बता देती हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों को थोड़ा बता दीजिए। एक नाम बता दीजिए आप संजू, एक नाम बता दीजिए जो आपने मुस्लिम समाज को टिकट दिया हो उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए आप। आई विल नॉट स्पीक इफ आई एम नॉट अलाउड। ओके, काउंटर क्वेश्चन, उनका काउंटर सवाल है, आपने बहुजन समाज के लिए क्या किया है? स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। Allowing others to interrupt me, I speak if I am given uninterrupted time. This is not fair. I did not heckle anyone on your debate. उनका सवाल है, आपने बहुजन समाज के लिए क्या किया है? I ask you, Padmaja Joshi, can you allow me not to be heckled? मैंने सवाल सुना है. I am not hard of hearing. Can you please control? Yeah, go on, answer the question. ठगा नहीं, ये Yes. ओबीसी के डिप्टी Now, why am I hearing this man screaming in the background? I do not want to hear background music. अभी ध्यान से सुनिए। Padmaja, I will take just 30 seconds. महिलाओं के लिए क्या किया है जो बार बार लोग पूछते हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिला है। जब कोरोना महामारी चरम सीमा पर थी, हर महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता था, जिसमें से 15 करोड़ जनता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से थी। 4.5 लाख युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी मिली है। लगभग 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में अटल पेंशन योजना का लाभ हुआ है। 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली मिली है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर लिंक रोड हो, इन पर या तो काम हो चुका है या काम निरंतर चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला लीजिए, जितना काम योगी मोदी ने किया है उतना 20 सालों में, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, किसी ने नहीं किया। ओके, बताइए। बात आती है, आई विल फिनिश इन अ मिनट, बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। ओके, लॉ एंड ऑर्डर विल कम टू इन जस्ट अ सेकंड। ये बात महिलाओं की हो रही थी। धर्मवीर चौधरी जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए पद्मजा जी, आज महिलाओं को लेकर के एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि हर 2 घंटे के अंदर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार इस डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। आज सबसे ज्यादा किसान इस डबल इंजन की सरकार में मारे गए हैं। सेना के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा जवान इस डबल इंजन की सरकार में मारे गए हैं। भ्रष्टाचार का आलम हो, महंगाई का आलम हो, बेरोजगारी का आलम हो, यह सरकार सब मुद्दों पर फेल हो गई है। और ये एक जाति धर्म को देख करके
बुलडोजर लेके घूम रही है। जनता इनके बुलडोजरों कौन सी जाति धर्म को लेकर, बुलडोजर का जाति धर्म से क्या लेना देना है? 10 तारीख को इनको जवाब पूरी तरह मिल जाएगा। एक सेकंड, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बुलडोजर का जाति धर्म से क्या लेना देना है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कह के विपक्ष ने अपने खिलाफ लोगों को खड़ा कर लिया। अगर कोई गुंडा है, कोई अपराधी है, कोई बदमाश है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, कोई टॉप हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में है, अगर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है, फिर भी अगर विपक्ष ये कह रहा है, तो फिर जनता को लगता है नहीं कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कब जाएगा बुलडोजर? राजा अरे सर, विकास दुबे का पूरा घर गिरा दिया। विकास दुबे कौन सा कोई जाति विशेष के थे या कोई धर्म विशेष के थे? आपका इशारा तो एक ही जाति और एक ही धर्म की तरफ है ना। विकास दुबे कौन सी जाति के थे लेकिन और कौन से धर्म के थे? जो आज जेलों में सड़ रही है वो आपको पता है, आंकड़े आपको पता है कि कितने, क्योंकि ये खासकर ठाकुरों की सरकार है, कितने ठाकुर है जिनका एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में या नहीं हुआ है? बताइए। क्योंकि आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, अगर माफिया की बात आती है, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि किसी ठाकुर के खिलाफ नहीं हुआ है एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में? पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं नाम बताऊंगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है पद्मजा जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 72 तारीख के ही जो ठाकुर के लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो पूरा घर गिरा दिया गया। सारे मऊ में उनके घर की जब्ती हो गई। और अगर ये लगता है कि सरकार कैसे कार्रवाई करे, तो मुख्तार अंसारी यूपी की जो हिस्ट्री शीटर लिस्ट है उसमें टॉप पर हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? बताइए धर्मवीर जी। पद्मजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये धनंजय सिंह के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये जो राजा भैया है इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये जो ब्रजेश सिंह है इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये मुझे बताइए आप मुझे। सर, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई आप उनको नजरअंदाज करके आपने एक लिस्ट बना रखी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजू वर्मा बताइए, सबसे पहले पूछेंगे कि फिर माफिया है, इनके खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज है, इनका घर बुलडोजर कब जाएगा? संजू वर्मा। अरे तुम बैठ जाइए, आता जाता कुछ नहीं है, सत्ता में वापस नहीं आओ तो टीवी स्टूडियो पे बैठ कर हल्ला मचाना आता है। पद्मजा, the most important this man, you know, please have this moral of बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। ओके, एक सेकेंड, आप इनको प्लीज जवाब देने दीजिए, प्लीज जवाब देने दीजिए। ऑन द लिमिटेड पॉइंट कि आप माफिया चुनते हैं जो आपके वोट बैंक के लिए कन्वीनियंट होता है, प्लीज उसका जवाब दीजिए संजू वर्मा। पद्मजा जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। एक हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर सीना जोरी। हमको नैतिकता पर भाषण कौन दे रहा है? जो कल तक मुख्तार अंसारी की गोद में जाकर बैठते थे, जिनके लिए आतिक अंसारी एक बहुत बड़ा नेता है। और हमको नैतिकता पर भाषण कौन देते हैं? जिनको ये याद नहीं है कि लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के बाद भी हमने कहा न्याय प्रणाली को जो ठीक लगेगा वो करेगी। हम कानून व्यवस्था के बीच में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यदि कानून व्यवस्था ने बेल दी है लखीमपुर खीरी के मामले में, तो उसमें अब भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां ना उठाए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ एक महाशय एनसीआरबी के डेटा दे रहे थे, 5 साल पहले क्राइम कन्विक्शन रेट was only 32%. आज कन्विक्शन रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन is 66%. And let me tell you, kidnapping cases are down 74%. Rape cases in Uttar Pradesh are down 37%. Dacoity cases are down 78%. इसीलिए बिना आंकड़ों के यहाँ पर आकर भाषण देना नैतिकता पर बंद करिए। मुझे एक बात बताइए, मैं समाजवादी पार्टी से भी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज दे आर अ डिस्टेंट सेकेंड। दे हैव गिवन द टिकट टू नाहिद हसन, accused of Hindu genocide in Kerala. They gave ticket to Azam Khan, who has 100 cases against him, all of them cognizable, non-bailable offences. And these are the people who come and lecture Bharatiya Janata Party on political morality on national television. Okay, रेखा चौधरी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सैयद असीम वकार से पूछना चाहती हूँ। रेखा चौधरी जी। पद्मजा जी, मैं संजू वर्मा जी से पूछना चाहती हूं
कि लखीमपुर खीरी की अभी ये जिक्र कर सर, रहे थे कि मैडम उन्होंने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दे दीजिए ना, नहीं तो हम एक दूसरे से सवाल पूछते रह जाएंगे। वो पूछ रही है कि जब आपको मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाहिद हसन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजम खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप सिर्फ अजय मिश्रा या लखीमपुर खेड़ी उन्हीं चीजों पर क्यों फोकस कर रहे हैं? नहीं, हमें देखिए, हमें सभी जो भी अपराधी है हमें उन सबसे प्रॉब्लम है, और गठबंधन में किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया गया है इस बार। अखिलेश यादव जी ने खुद जीरो टॉलरेंस की बात कही है। नाहिद हसन के खिलाफ हिंदू जेनोसाइड का मामला है, यूपी गैंगस्टर संजू वर्मा जी पहले अखिलेश यादव जी पर पहले योगी जी पर कितने मुकदमे हैं? पहले योगी जी पर कितने मुकदमे हैं वो बताइए आप। और उन्हें आपको शर्म नहीं आती? योगी जी बुलवाते हैं अपने आप को। अरे प्रजापति को गोद में ले, तो कुलदीप सेंगर को किसने बैठाया है? भाषण आप कुलदीप सेंगर को किसने बैठाया है अपनी गोद में, ये बताइए। और साइकिल की हवा नहीं, और जब टैनी के बेटे को ओके संजू वर्मा जी, टैनी वर्मा के बेटे को बेल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, टैनी के बेटे को बेल मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ओके देखिए, जहां तक कि as far as people with a tainted past are concerned, everyone has got their own share. Clearly there were mitigating factors in favor of one party, which is why people have given these numbers. Finally, who have the youth chosen? Because this always is considered an important subset. It will also define what happens in the coming years. These people will be your voters, first-time voters, those in their 20s will be your voters for the next 3-4 elections as well. So who have the youth of Uttar Pradesh gone for? And it's an overwhelming vote in favor of the BJP. More than half, 55.3% of the people of Uttar Pradesh have said, the youth have said, that our first preference is BJP, and 34.2% have said Samajwadi Party. The rest are nowhere really in the running. सैयद असीम वकार, अगर हम देखें कि ये सारे आंकड़े, महिलाएं हैं, यूथ है, कास्ट ग्रुप्स है, अगर वो सारे बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो क्या ये एक योगी वेव है? क्या ये जीत एक योगी विन होगी? नहीं मैडम, जितना देखिए हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और आप लोग जर्नलिज्म में हैं, तो हमारी आपकी लड़ाई तो चलती रहती है। आप अपने नजरिए से देखते हैं, हम अपने नजरिए से देखते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है वो बीजेपी से नाराज नहीं था, वो मोदी से और योगी से नाराज था। और इस हद तक नाराज था कि मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है वो घर से नहीं निकला, उसने वोट नहीं किया है। तो ये जो आप 2-3% की कमी देख रही हैं, जो परसेंटेज गिरी है, इसको लोग कह रहे हैं कि अगर ये एंटी इनकम्बेंसी होती तो वोटर परसेंटेज बढ़ जाती। मेरा मानना यह है कि जो वोटर था, बीजेपी का कैडर वोटर था, बेस वोटर था, वो घर से नहीं निकला। उसने अपनी नाराजगी ये जताई है कि हम वोट ही नहीं देंगे तुमको। पर क्यों नहीं निकला? तो क्या वजह है काडर के नाराजगी की आपके हिसाब से? था, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नहीं, पर काडर उनका नाराज क्यों है? उसने बीजेपी का जो एंटी वोटर था उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काम ऐसे किए हैं मैडम, जैसे बहुत ऐसे काम किए हैं। अब आप ये बता दीजिए, बताता हूं आपसे। देखिए, जितने चैनल हैं और जितने सर्वे कंपनीज हैं वो एक तरह का गाना गा रहे हैं, आप बिल्कुल कहीं से भी आप उन लोगों को नहीं दिखा रहे हैं जो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाठियां चल रही हैं। टीटी वालों को आप लोगों ने दिखाया ही नहीं, ना टीटी वालों से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, ना आपने टीटी वालों से पूछा कि आप इनको किसको वोट देंगे, सपा को देंगे, बहुजन को देंगे, एमआईएम को देंगे, कांग्रेस को देंगे। आपने सर्वे में उनका जिक्र ही नहीं किया, आप सर्वे में उनके पास गए नहीं। आप कोविड से जो प्रताड़ित लोग थे, आप उनके पास नहीं गए।
आपने उन लोगों से सर्वे किया, मुझे लगता है सर कि ये जो सर ये तो हमने जो जनता है उससे सर्वे किया है। आपको कैसे पता कि उसमें कोविड से प्रताड़ित लोग नहीं है, उनमें टीटी के लोग नहीं है? अगर 50% लोग कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया है, उसमें आप ऐसे इंडिविजुअल्स को कैसे देख सकते हैं कि भाई हमने सिर्फ बीजेपी के समर्थकों से ही बात की है? क्लियरली कुछ 32% समाजवादी के भी पक्ष में बोल रहे हैं ना। नहीं, मैं बताऊं आपसे, अब अगर हम अपना कैमरा लेके निकलेंगे तो हम अपने लोगों से पूछेंगे, कांग्रेस वाले अपने लोगों से पूछेंगे, सपा वाले अपने लोगों से पूछेंगे, और आप लोग जो हैं अपने लोगों से पूछेंगे। अरे हमारे तो वही कौन से लोग हैं कि आप लोगों ने अपने लोगों से पूछा, तो अब वही लोग हैं जिनका सर्वे आप दिखा रही हैं। अच्छा, चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक काम कीजिए सैयद असीम वकार साहब, आप अपना सर्वे का डेटा हमसे कल शेयर कीजिए, हम वो भी कल दिखाएंगे। आपने भी कुछ अपने लोगों से बात की हुई होगी, अपना सर्वे दिखाया होगा। हर्षवर्धन जी इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आसिम वकार साहब को बताना चाहिए ना कि अगर कोई उनका कोई सर्वे है तो बता दे कि भाई ये सेट ऑफ पीपल हैं जिनसे बात करनी चाहिए। और बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं निकल रहा है, वोट नहीं दे रहा है, एंटी हो गया है। राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, मंदिर बनाना बन गया। काशी विश्वनाथ धाम, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुद्दा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुद्दा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां अभी बदली हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं कि बड़ा नाराज है वो वर्ग, तो वो वर्ग कौन सा नाराज है? किसके काम रुक गए? कौन मुश्किल में पड़ा? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं नाराज है, जिनका काम रुक गया है, जो मुश्किल में आ गए हैं, वो जरूर नाराजगी में। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी का कैडर नाराज है और नाराजगी के बावजूद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो बेहतर दिनों में क्या आंकड़े होते। आई एम अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ टाइम, बट beginning tomorrow we are going to take a look at more specific caste-based, region-based data to tell you the story behind these numbers, the micro stories that will really tell you about the trend in the coming years. For the time being, thank you very much for having joined us. Thank you. It's been a long day. अगले 2 दिन भी बहुत exciting होने वाले हैं, and of course March 10 with Times Now. Thanks for watching.